Hello children, how are you? Today my first history class of standard 7. Now we read about medieval Europe, rise, spread and Christianity. Medieval Europe, rise and spread of Christianity. First of all, we read what is means of medieval. The term medieval means middle. To know the changes in the lives of the people of the past. To know the changes in the life of the people of the past. Already, we can divide history into three parts. Ancient, medieval, modern. Now, I explain. In Europe, the medieval period begins from the 5th century CE and goes up the 15th century CE. In India, it starts from the 8th century CE and goes up the end of 18th century CE. Major events are visible. Changes in the society, polity and economy are taking the basis of these periodic divisions. For example, the fall of Roman Empire in 476 CE is taken as the beginning of the medieval period in Europe. The European society began to show striking changes thereafter. To know about the medieval period, both archaeological and literary sources. आप देख रहे हो मैं पहले से नोट्स तैयार करके रखी हुई हूँ ताकि आपको पढ़ने में, क्वेश्चन बनाने में काफी आसानी हो. To know about the medieval period, both archaeological and literary sources are available. First point, archaeological sources. Second, literary sources. Archaeological sources include monuments, tools, coins, painting and inscription. For example, the Taj Mahal, monument of Mughal period and coins of Delhi Sultanate. Previous classes में जो मैं ऑलरेडी स्कूल में ले चुकी हूँ क्लासेस, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन समझाया है. देन लिटरेरी सोर्सेस. लिटरेरी सोर्सेस इंक्लूड बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स along with chronicles of rulers and dynasties. For examples, Babarnama, the autobiography of Babur, the account recorded by Ibn Battuta of foreign traveler. Now, I explain social political system, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था. First point, the medieval period witnessed many social, economic and political changes all over the world. अगर मध्यकालीन युग की हम बात करेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो. ट्रेड एंड कॉमर्स वाज डिक्लाइनिंग आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड किंगडम्स एंड एम्पायर. जो पुराने किंगडम्स थे, जो पुराने साम्राज्य थे, उनकी खत्म समाप्त होने के साथ साथ जो पुराने ट्रेड थे, कॉमर्स थे, उनका भी डिक्लाइन हो गया. फ्यूडलिज्म स्प्रेड इन द इंटायर यूरोप. इंटायर यूरोप में फ्यूडलिज्म स्प्रेड, ये बहुत तेजी से ये फैलने लगा. नाउ आई एक्सप्लेन व्हाट इज फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म, द सोशल सिस्टम which existed in the Middle Age in Europe, in which people work and fought for a person who owned land and received land and protection from him in return. यूरोप की मध्ययुगीन सामाजिक प्रथा जिसमें लोग अपने मालिक की चाकरी करते थे और मालिक उनकी प्रोटेक्शन, उनकी रक्षा करते थे. सोसाइटी वॉज डिवाइडेड बिटवीन पीजेंट्स एंड द फ्यूडल लॉर्ड्स. ये जो समाज था वो डिवाइडेड था, वो बटा हुआ था. पीजेंट्स, दैट मीन्स फार्मर, कृषक, एंड द फ्यूडल लॉर्ड्स. इन सर्टेन कंट्रीज लाइक यूरोप, it took the form of serfdom. In other countries like India, the zamindars and the nobility ruled the land and took the major portion of the produce.
रोमन कंक्विस्ट ऑफ पैलेस्टाइन। जैसा कि हमने टॉपिक में पहले ही बता दिया था कि हम क्रिश्चियनिटी धर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। रोमन कंक्विस्ट ऑफ पैलेस्टाइन, पॉम्पी द ग्रेट कंक्विस्ट ऑफ जेरूसलेम, जो बहुत बड़ा जेरूसलेम का विजेता था। इंडिया द ज्यूइश इंडिपेंडेंस एट जूडिया वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रोमन रिपब्लिक, जो कि रोमन रिपब्लिक में इसको शामिल कर लिया गया। द वार कंटिन्यू फॉर जस्ट 3 months, ये लड़ाई जो थी 3 महीने तक चलती रही, बट काउस्ड अ ह्यूज डिवास्टेशन लीडिंग टू द डेथ ऑफ 12,000 Jews, जिसका ये रिजल्ट हुआ कि बहुत सारी तबाही बर्बादी हुई, जिससे 12,000 Jews मारे गए। क्रिश्चियनिटी was founded by Jesus Christ. It became one of the most popular religions of the world, जो कि दुनिया का बहुत बड़ा रिलीजन बना। द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज द बाइबल, जो क्रिश्चियंस की होली बुक है वो बाइबल कहलाती है। जीसस क्राइस्ट was born Bethlehem, Judea. Jesus was son of Joseph and Mary. Jesus was son of Joseph and Mary. He grew up in Nazareth. At the age of 12, he began discussions with Jewish teacher on religious scripture. जब वो उनकी उम्र 12 साल की हुई तो उन्होंने डिस्कशन करना शुरू कर दिया विद ज्यूइश टीचर और रिलीजियस स्क्रिप्चर, जो भी धार्मिक किताबें होती थी उन पर। ही बिगेन प्रेचिंग द मैसेज ऑफ लव, वो लोगों के बीच लव, पीस और ब्रदरहुड का मैसेज देने लगे। पीपल वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम बिकॉज ऑफ हिज सिंपल लाइफ स्टाइल, लव एंड काइंडनेस। लोग उनसे अट्रैक्ट होने लगे उनके सिंपल लाइफ स्टाइल को लेकर के, लव को लेकर के और काइंडनेस को लेकर के। Now explain teaching of Jesus. Teaching of Jesus. The Bible has 2 parts, Old Testament and New Testament. Old Testament contains the history of the Jews and their relationship with God, and the New Testament contains a biography, teaching of बायोग्राफी और उनके टीचिंग की। जीसस अपोज्ड मीनिंगलेस रिचुअल्स, जीसस जो थे वो बिल्कुल भी जो भी पुराने रस्म रिवाज होते थे, जो ट्रेडिशंस होते थे, वो बिल्कुल उसके खिलाफ थे। मीनिंगलेस, जो जिसका भी कोई मानी नहीं निकलता था, वो उसका अपोज करते थे। ही थॉट पीपल टू डिवोट देयर लाइव्स टू द सर्विस ऑफ गॉड, वो लोगों को ये बताते थे कि अपने जीवन को गॉड के सर्विस में बिताओ। ही ऑल्सो टाउट पीपुल टू हेल्प अदर्स, इसके अलावा वो लोगों को बताते थे कि वे दूसरों की मदद करें। और इसके अलावा बहुत सारे जो उनके टीचिंग्स हैं, मैं पीडीएफ बना करके बुक का भेजूंगी, तो आप उसमें देख लेना और सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट्स कर लेना। क्रूसिफिक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एक्ट ऑफ क्रूसिफाइंग समबडी, दैट मीन्स किसी पर्सन को सूली पे चढ़ाना। The growing popularity of Jesus made the Jewish religion's leader angry. जैसे जैसे जीसस की लोकप्रियता बढ़ती चली गई, उसी तरह Jewish religious leaders से बहुत क्रोधित होने लगे। They plotted against him and informed the Roman officials that Jesus called. उन्होंने ये
इन्फॉर्म किया कि जीसस जो है वो खुद को किंग ऑफ ज्यूस बताते हैं, प्रोवोक पीपल टू रिबेल अगेंस्ट द रोमन एम्पायर। जेरूसलम was then a part of the Roman Empire. Jesus was arrested and sentenced to death. उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया और मृत्युदंड की सजा सुना दी गई। His hands and feet were nailed to the cross and he was left to die in Golgotha in 30 CE. This act is known as the crucifixion. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा ये क्रूसिफिक्शन क्या है। Thus the क्रॉस बिकम ए सैक्रेड सिंबल। वो जो क्रॉस था वो पवित्र प्रतीक बन गया क्रिश्चियंस के लिए। द डे ऑफ क्रूसिफिक्शन इज ऑब्जर्व्ड एज गुड फ्राइडे। जो क्रूसिफिक्शन का डे था, जिस दिन जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था, वो दिन गुड फ्राइडे। इट इज बिलीव्ड दैट ऑन द थर्ड डे, इस बात में बिलीव किया जाता है, इसके तीसरे दिन ऑफ हिज ब्यूरियल आफ्टर हिज क्रूसिफिक्शन ही रोज फ्रॉम द डेड। This is called resurrection. It was on a Sunday, so it is celebrated as Easter Sunday. Now I explain my point. Spread of Christianity. Christianity कैसे फैला, ये क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म थे ये कैसे फैले। After his death and resurrection, Jesus was known as the Christ. उनके डेथ के बाद, रिसरेक्शन के बाद जीसस क्राइस्ट का नाम दिया गया था, सन ऑफ गॉड। His disciples were called apostles. Apostles travels from and wide, जो भी उनके टीचिंग को दूर दूर तक फैलाते, wide and spread the teaching of Jesus। जो apostles थे उनके टीचिंग को दूर दूर दूसरे एरिया में उसको फैलाते। क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर एंड यूरोप। क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर एंड यूरोप। इनिशियली द रोमन एम्पायर्स रिगार्ड क्रिश्चियनिटी एज अ डेंजर because the followers of Jesus refused the worship of Roman God. They did not participate in the public festival of the emperor and Roman gods. The people following Christianity were declared unlawful. They were prosecuted, nailed to the cross, burnt alive, or thrown in front of wild animal in the amphitheaters. In spite of these atrocities, Christianity survived and grew. The Christians were present in Greece, Egypt, Turkey, and North Africa at the advent of the 4th century CE. And students, my next point, the advent of Christianity. Constantine, the builder of Constantinople and the founder of Byzantine Empire, was the first Christian emperor of Rome. Constantine decided it was the best to locate his new city at the site of old Byzantium, claiming to be the new Rome, Nova Roma. The city had several advantages. It was तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको क्रिश्चियनिटी धर्म के बारे में बताया, रिलीजन के बारे में बताया, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ये टुडे इट इज़ माय फर्स्ट क्लास एंड मैंने फर्स्ट पार्ट थोड़ा लेकर के पढ़ाया है। अब मैं लगता है मुझे कि होमवर्क का टाइम आ गया, मैं आपको होमवर्क दे दूं और उसके सेकंड पार्ट में मैं आगे का एक्सप्लेन करूंगी। इसे आप केयरफुली पढ़ना। ओके, आई गिव यू होमवर्क। Write these questions. All students, answer the following question. Name the founder of Christianity. Name the founder of Christianity. It's very easy question. मैंने जो भी पढ़ाया है उसमें से आंसर आपको निकल जाएगा। Question number 2. Name the holy book of Christians. Question number 3. What were the name of Jesus' parents?
Explain the visual system present in Europe in the medieval period. What is crucifixion? अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. ओके, बाय, थैंक यू.